Okay, the recording has started now. You people just put your attendance. Okay, so we have started the magnetism chapter. Okay, and it is very similar to the electrostatic chapter. बहुत ही कम difference है इनमें, इन दो chapters में. ठीक है. So we will just quickly revise whatever we have learned in the previous lectures. Okay, and after that we will continue with the remaining portion. So as we all know, we found magnet in a form in which there are always two poles, north pole and south pole. मतलब कि दोनों भी पोल कभी भी हमें सेपरेट नहीं मिल सकते, बराबर. मैग्नेट के जो दोनों पोल है वो सेपरेटली हमें नहीं मिल सकते. हम मैग्नेट को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें, हमें हमेशा दो पोल ही मिलेंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल साइमल्टेनियसली मिलेंगे. ओके, सो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, वो हमें सेपरेटली मिलते थे, लेकिन मैग्नेट के बारे में वैसा नहीं है. तो मैग्नेटिज्म में वी हैव टू डील विथ मैग्नेटिक डाइपोल ओनली. ओके, मतलब हमें मैग्नेटिक डाइपोल को ही कंसिडर करना है इन एवरी सिचुएशन. ओके, both the poles are there, so magnetic dipole will be the what we can say, the base factor of our assumptions. Okay, so this is the one thing. After that there are few formulas, that is b is nothing but the representation of magnetic field. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई था, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी है. मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया. नाउ वी नो दैट व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर surface area. Okay, so that is magnetic flux. So this is the way we can calculate electric field as well as magnetic field. Okay, so this formula is identical for both. After that we have seen some parameters of magnet. What are those parameters? Let us see. Okay, if we consider the magnet as a bar magnet. Okay, so let us suppose this is a bar magnet. So this is geometric length of the bar magnet and the actual magnetic length. See, magnetic length के लिए एक formula है, that is 2L. 2L is equals to 5/6 multiplied by geometrical और geometric length. Okay, मतलब कि अगर 6 सेंटीमीटर का मैग्नेट है तो एक्चुअल में उसकी मैग्नेटिक लेंथ रहेगी 5 सेंटीमीटर ओनली, अगर हम उसे इस फॉर्मूला में प्लेस करें. ओके, आफ्टर दैट इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज द line passing through the midpoint of that bar magnet. Okay, so this is a midpoint of the bar magnet, and the line that is perpendicular to this magnetic axis and passing through the midpoint, that is called equator. So equator is this and axis is this. Axis is the line that is passing through the north pole and south pole, that is called axis. Okay, so these are few basic things that we need to remember about magnet. After that we have derived formulas for calculating magnetic field due to bar magnet on some points, like the point may lie on axis, or it may lie on equator, or it may lie on somewhere else, like for example arbitrary point. Okay, so we have three formulas for that. I hope you remember those formulas. If you don't remember, you just open your physics book and just check whether you have written these formulas or not. Okay, these formulas are very very important. If the point is on axis, now you all know what is axis for bar magnet. Okay, the point is on axis and we have to calculate magnetic field due to bar magnet on that point. So we have this formula, that is b axis is equals to mu 0 divided by 4 pi multiplied by 2m divided by r cube. Now m is what? M is magnetic dipole. Okay, we have seen the formula for magnetic dipole also. So I hope this formula is with you. Okay, आप लोगों के पास ये formula है, magnetic field due to bar magnet at a point along its axis. Okay, so this formula is there. So this is the first important formula in this chapter. After that, the second formula is for the point which lies on the equator of that bar magnet. Okay, मतलब
इक्वेटर की जो इमेजिनरी लाइन है उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो वहां पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सो दिस फॉर्मूला वी हैव. सो देर इज स्लाइट चेंज इन द earlier formula and this formula. What is that change? Here instead of 2m only m is there. Okay, 2m nahi hai, sirf m hi hai, and one minus sign is there. Okay, so this is the difference in the formula of b axis and b equator. मतलब कि दो पॉइंट अगर अलग अलग जगह पे है, फॉर एग्जांपल एक एक्सिस पे है दूसरा इक्वेटर पे है, तो हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, नाउ वी हैव द थर्ड फॉर्मूला. Okay, before going to the third formula we will just see the comparison. Okay, so that आपको थोड़ा सा इजी जाएगा कंपैरिजन करने में. वैसे तो हमने ये पढ़ लिया लेकिन फिर भी एक ग्लांस इस पे हम कर लेते हैं. ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स या फिर मैग्नेटिज्म को हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सो यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. और यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है मैग्नेटिक पोल. मैग्नेटिक पोल इज नॉर्थ पोल और साउथ पोल. फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेटर बी. ओके, कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो. नाउ एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए. एप्सिलॉन जीरो की कांस्टेंट वैल्यू है बराबर 8.854 multiplied by 10 raised to the power minus 12 is the value of epsilon zero. Okay, now मैग्नेटिज्म के लिए जो कांस्टेंट है दैट इज म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई. ओके, म्यू जीरो की भी वैल्यू एक कांस्टेंट रहती है जो कि हमें मोस्टली एग्जाम्पल में ही दी रही थी. ओके, मतलब कि इससे हमें याद करने की जरूरत नहीं है. वैसे तो हम आपको एप्सिलॉन जीरो की भी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज बेटर कि अगर आपको याद रहता है तो इट इज बेटर. ओके, डाइपोल मूवमेंट हमने देखा. इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम डिनोट करते थे P से, और उसका फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाइड बाय 2L. ओके, वही मैग्नेटिज्म में M से डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एंड इट्स फॉर्मूला इज अगेन QM मल्टीप्लाइड बाय 2L. उसकी डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, और मैग्नेटिज्म में है साउथ पोल से एन पोल. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर फोर्स. यहाँ पे सिर्फ E की जगह पे B रखा है. सिमिलरली यहाँ पे P की जगह पे M है, E की जगह पे B है. ओके, सो दीज आर सिमिलर क्वांटिटीज जिसका कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं. नो कूलम्स लॉ इज देयर कि एक चार्ज की वजह से दूसरी चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है. ऐसा कोई कंसेप्ट हमारे मैग्नेटिज्म चैप्टर में नहीं है. ओके, बिकॉज we don't have separate poles as I told you before. Okay, so this is the only formula that is not, or there is no as such formula in magnetism. So this is the formula for force. After that axial field for a short dipole. तो ये short dipole के लिए कुछ formulas है. इसमें भी similar quantities है. एक formula याद कर लिया तो बाकी के formulas आप याद कर सकते हो. देखिए ये एक्सिस पे है तो यहाँ पे 2p लिखा है, यहाँ पे 2m लिखा है. यहाँ पे इक्वेटोरियल फील्ड है, मतलब कि इक्वेटर पे है तो P लिखा है, M लिखा है. सो मतलब कि इसमें एक एनालॉजी आपको दिखाई देगी, कुछ तो एक सिमिलैरिटी आपको दिखाई देगी जिससे कि आप इजीली इसे याद कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज द कंपैरिजन. आफ्टर दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ आर्बिटरी पॉइंट. मतलब कोई भी एक रैंडम पॉइंट अगर हम उठाए तो उस रैंडम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस फॉर्मूला इज फैमिलियर टू अस. म्यू जीरो डिवाइड बाय 4 पाई multiplied by m divided by r cube. This is actually the formula for, or this is a formula similar to the point which is on equator. Okay, so what is the addition here, or multiplication? That is under root 3 cos square theta plus 1. This is the extra term that is added for arbitrary point. Okay, so इसके बाद में हमें कुछ angles भी निकालने पड़ते हैं. So just remember the formula tan alpha is equals to 1/2 tan theta. ओके, आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए ही हमें एंगल निकालने की जरूरत पड़ती है मोस्टली. एक्सियल पॉइंट पे अगर हम बात करें तो एंगल रहता है 0. इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम बात करें तो एंगल रहता है 90 डिग्री. करेक्ट. सो आर्बिट्ररी पॉइंट पे हमें एंगल निकालने की जरूरत पड़ सकती है. सो दिस इज व्हाई दिस फॉर्मूला इज देयर. तो इसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, डोंट वरी अबाउट इट. तो ये मुझे लगता है एग्जांपल 12.1 मैंने लिया है लास्ट क्लास में. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज Gauss law of magnetism. Okay,
So before going to the Gauss law for magnetism, I would like to ask whether you remember the Gauss law for electrostatics. किस किस को याद है गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वॉट एवर, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, सॉरी पिछले चैप्टर में पढ़ा है गॉस लॉ. ये गॉस लॉ वी आर लर्निंग फॉर सेकेंड टाइम, हम दूसरी बार पढ़ रहे हैं. किसी को याद है? एनीवन? अगर है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए चैट बॉक्स में, so that we can proceed. And I hope we are not getting we are not going too fast. Okay, Sankalp remembers it, Suraj do not remember. Okay, समीर को भी रिमेम्बर याद नहीं है. ओके ठीक है, आर्या को भी याद नहीं है, चलो ठीक है. सो गॉस लॉ क्या है कि चार्ज इनक्लोज्ड और द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस. सी रिमेंबर, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. मतलब कि अगर किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, so that flux will be equal to the charge present inside that is enclosed surface. For example, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि so this is one charge, यहाँ पे एक ही चार्ज है, इसे एक चार्ज पकड़ के चलिए, this is of 5 coulomb. okay, so according to Gauss law, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जाएगा? how much magnetic flux will be passing through this surface? how much flux बताइए. इजी है ना, ये तो इजी है. मैंने अभी अभी क्या बताया कि अगर किसी क्लोज सरफेस में कोई चार्ज है तो उसमें से जो फ्लक्स पास होता है दैट इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. ठीक है, अगर 5 कूलम का चार्ज इस सरफेस के अंदर है, सो 5 कूलम का फ्लक्स ही पास होगा ना. ऑब्वियस, दैट इज ऑब्वियस थिंग कि 5 कूलम का फ्लक्स यहाँ पे है तो कितना चार्ज पास होगा, सॉरी कितना फ्लक्स पास होगा? 5 कूलम्स. okay, now this is another charge and that is outside the closed surface, that is of 3 coulombs. so अभी मुझे बताइए कि कितना फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से, कितना फ्लक्स पास होगा? सब लोग आंसर दीजिए. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है. नहीं, 3 कूलम पास नहीं होगा. आप याद रखिए, इस सरफेस की बात कर रहा हूं ना मैं. इस सरफेस के बाहर कितना फ्लक्स है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर इट इज 3 कूलम और 300 कूलम और 3000 कूलम. हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस सरफेस की. ओके, ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसकी ही बात कर रहे हैं हम. सो 5 विल बी द आंसर अगेन. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल इफ देयर इज another charge that is of -8 coulomb that is lying outside the surface, so what will be the total charge or the total flux passing through the surface? Total flux passing through the surface will be again 5 coulomb only. ठीक है, मतलब कि उस सरफेस में जितना चार्ज है उतना ही तो फ्लक्स जाएगा ना. उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है ही नहीं तो उसका फ्लक्स जाएगा नहीं. ओके, नाउ आई विल आस्क यू, अगर एक और मैंने यहाँ पे चार्ज डाल दिया, ओके, इसी सरफेस के अंदर, और वो है -2 कूलम्स का, तो कितना फ्लक्स पास होगा? कितना फ्लक्स पास होना चाहिए इस सरफेस से? yeah, it should be 3 coulombs. okay, so the flux should be 3 units. समझ में आया क्यों? क्योंकि +5 है और -2 है. so this is Gauss's law for magnetism, sorry electric field. okay, now हमें गॉस लॉ सीखना है फॉर मैग्नेटिक फील्ड. अभी एक बात आप समझ लीजिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेपरेट चार्जेस मिलते थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस वेर अवेलेबल, बट इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज, सॉरी साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है वो अलग अलग हमें नहीं मिलेंगे. ओके, सो लेट अस सपोज इफ देयर इज वन अगेन closed surface is here and one bar magnet is here. okay, one bar magnet is here. so north and south pole are both lying inside this surface. so इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, ओके, एन का और एस का, दैट इज इक्वल एंड दैट विल दे विल कैंसिल ईच अदर. ओके, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड
एन पोल की वजह से रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड एस पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे कैंसिल करेगा। मतलब कि द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज जीरो। समझ रहे हो? इसे ही हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, दिस इज मैग्नेटिक, if outer unit is given then it is equal to the inner charge. Okay, we have nothing to do with outer charges. Okay, जो सरफेस के बाहर है उन चार्जेस का हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, इट डू नॉट अफेक्ट द फ्लक्स। ठीक है, जो चार्जेस इनसाइड द सरफेस है उन्हीं को हमें कंसीडर करना है। ओके, नाउ इसको हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड वी कैन कंसीडर वन डाइपोल दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस डाइपोल को क्या होता है, दो चार्जेस रहते हैं, दो इक्वल चार्जेस रहते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके, नाउ ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है 3 कूलम का, ये नेगेटिव चार्ज है 3 कूलम का। दिस पॉजिटिव विल कैंसिल आउट दिस नेगेटिव and the total flux passing through this surface will be zero. Okay, similarly if a magnet, a bar magnet, or if we calculate the Gauss law for magnetism, then it is going to be always zero. Always zero. Why zero? Because we cannot find or we cannot get north pole and south pole separate. मतलब कि हम सेपरेटली, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सिर्फ हमने नॉर्थ पोल ही रखा होता, ओके, यहाँ पे सिर्फ हमने नॉर्थ पोल ही रखा है, सो देन इट इज पॉसिबल दैट सम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो कुछ फ्लक्स पास होगा। अगर आप लोग कहेंगे कि सर देखिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्थ पोल को रखेंगे यहाँ पे सरफेस के अंदर और साउथ पोल को रखेंगे बाहर। ओके, so this is again not possible. Why not possible? Because the lines that are coming to this north pole, see यहां से यहां अगर आएगी भी लाइन तो similar field will go out inside the magnet. Okay, so the flux will be always zero. अगर हम यहाँ पे किताब की भाषा में पढ़ना चाहे तो देख लीजिए, मैंने समझा दिया आपकी गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या है। द गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन टू यू. It states that the electric flux through a closed Gaussian surface is proportional to the net electric charge enclosed by the surface. The Gauss law for magnetic field states that the net magnetic flux phi b through a closed Gaussian surface is zero. तो यहाँ पे हमेशा जो फ्लक्स रहेगा दैट इज जीरो, इसकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी। ओके, नाउ द मैग्नेटिक field for the magnetic force of lines of force, a bar magnet, a current carrying finite solenoid, and C electric dipole are shown in figure 14.4 A, B and C respectively. The curves labeled 1 and 2 are cross sections of 3-dimensional closed surfaces. Okay, now see यहाँ पे ये जो पहला फिगर है दैट इज बिकॉज ऑफ बार मैग्नेट, जो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो जो लाइंस एक सरफेस में से जितने लाइंस पास होते हैं उसे ही हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स इज नॉट लाइक समथिंग डिफरेंट क्वांटिटी। ओके, सो यहाँ पे एक सरफेस आपको दिख रहा है, वन सरफेस इज देयर एंड सेकेंड सरफेस इज देयर। सो जितनी लाइंस इस सरफेस में आ रही है उतनी ही लाइंस इस सरफेस से बाहर जा रही है इफ यू सी। ओके, सो देखो ये लाइन यहाँ पे अंदर चली गई सरफेस के, यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से ये दोनों लाइंस बाहर निकल रही है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज जीरो। ओके, रिजल्टेंट जीरो ही है, मतलब एक्चुअल में उस सरफेस से कुछ नहीं निकल रहा है। जितनी यहाँ पे आ रही है लाइंस उतनी ही लाइंस उस सरफेस से बाहर जा रही है। ओके, सो सिमिलरली फॉर सोलेनाइड, सोलेनाइड का भी हम करंट कैरिंग जो कंडक्टर सोलेनाइड रहता है उसकी मदद से भी हम एक मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कर सकते हैं और उसका भी फील्ड सिमिलर ही रहेगा लाइक द बार मैग्नेट। इट विल एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट अंटिल द करंट इज सप्लाइड टू इट। ओके, सो सिमिलरली देखिए यहाँ पे एक सरफेस दिखाया गया है आपको, दिस क्लोज सरफेस इज देयर। सो नंबर ऑफ लाइंस इन कमिंग इनसाइड द सरफेस are equal to the number of lines going outside the surface. Okay, so again the resultant magnetic flux passing through this surface is zero. Similarly for
इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तो हमने सीखा ही है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसमें भी वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड द रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी जीरो. If we compare the number of lines of force entering in and leaving out of the surface, it is clearly seen that they are equal. हमने तीनों भी केसेस में देख लिया कि वो जो लाइंस है वो इक्वल ही है. The Gaussian surface does not include poles. It means that the flux associated with any closed surface is equal to zero. When we consider surface 2 in figure 14.4b, we are enclosing the north pole, as even a thin slice of bar magnet will have north and south poles associated with it. The closed Gaussian surface will also include a south pole. However, in figure 14.c, for an electric dipole, the field lines begin from positive charge and end on negative charge. For a closed surface 2, there is a net outward flux since it does not include a net positive charge. According to the Gauss law of electrostatics studied earlier, that is integration of electric field intensity with respect to the surface, that is ds, is equals to q divided by epsilon 0, whereas q is the positive charge enclosed. Thus situation is entirely different from magnetic lines of force, which are shown in figure 14.4, 12.4a, 12.4b. Thus Gauss law of magnetism can be written as phi b is equals to integration of b bar multiplied by ds bar is equals to 0. So just write down this statement: Gauss law of magnetism, like phi b is equals to integration of b bar multiplied by ds bar is equals to 0. Just write down this. Okay, ये एक ही सेंटेंस और एक ही आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है, और ये फॉर्मूला आपको मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जब कभी भी आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी आपके एग्जांपल्स में, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट रिप्लेस दिस फॉर्मूला विद द वैल्यू 0. ओके, ये फॉर्मूला अगर आपको कभी जरूरत पड़ी भी, phi b is equal to इंटीग्रेशन ऑफ b into ds, तो उसके जगह पे सीधे आप 0 लिख सकते हो. ओके, have you written the formula for Gauss law of magnetism? Please respond. Write down the formula and okay, written. ठीक है, good. Now we will see the Earth's magnetism. Okay, so it is common experience that a bar magnet or a magnetic needle suspended freely in air always aligns itself along geographic ns directions. It has a freedom to rotate about horizontal axis. It inclines with some angle with the horizontal in the vertical ns plane. Okay, so देखिए आपको अगर आपने एक्सपेरिमेंट इससे पहले भी किया रहेगा 9th 10th स्टैंडर्ड में. क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेना है, धागा लेना है, और उसे एक बार मैग्नेट हमने अटैच करना है सेंटर पे मोस्टली. ओके, तो हमने सेंटर पे यहाँ पे बार मैग्नेट को अटैच कर दिया, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है. सो इसे हमने फ्रीली छोड़ दिया इन द एयर. सो क्या होगा, फ्रीली छोड़ दिया मतलब ये एंड तो हमें पकड़ना है. ओके, दिस एंड को हमें होल्ड करना पड़ेगा, और सेकंड एंड जो है दैट इज फ्री. सो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये जो मैग्नेट है, दैट मैग्नेट विल अलाइन इन एनएस डायरेक्शन, दैट इज नाउ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. मतलब कि इसका जो नॉर्थ पोल है दैट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, एंड दिस south pole of the bar magnet will be pointing towards south pole of the earth. Okay, yes, it will coincide with the geographical poles. Very correct. Okay, so I hope you all know that. Okay, आप सब लोगों को पता है. तो मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, why is this? Okay, so earth जो है, earth is nothing but a kind of a magnet. ठीक है, इट इज अ मैग्नेट. सो दिस इज नॉर्थ पोल ऑफ आवर अर्थ एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ आवर अर्थ. दिस फिगर मे नॉट लुक लाइक अर्थ, but just consider for a second that this is a earth. Okay, now if the bar magnet is set freely, so it will
स्टेबल एट दिस पोजीशन, ओके, इस पोजीशन पे स्टेबल हो जाएगा। या सो सी, यहां पे क्या हो रहा है कि एन पोल जो है वो अर्थ के एन पोल के साइड में अलाइन हो रहा है, एंड साउथ पोल इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। बट एक्चुअल में अगर हम देखें कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट साउथ पोल, साउथ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल, ओके, सो इस प्रिंसिपल की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में, मतलब जो हमारा एक्चुअल नॉर्थ पोल है अर्थ का, एक्चुअल नॉर्थ पोल अर्थ का, दैट इज नथिंग बट द मैग्नेटिक साउथ पोल, ओके, मैग्नेटिक साउथ पोल। जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ इज मैग्नेटिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल, सी मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जियोग्राफिकल साउथ पोल इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। समझ रहे हो? तो जैसे कि संकल्प ने बताया कि अर्थ नॉर्थ पोल एक्ट्स लाइक साउथ पोल एंड वाइस वर्सा, मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह रिएक्ट करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरह रिएक्ट करेगा। किसका? अर्थ का, जो हम मैग्नेट बार मैग्नेट पकड़ रहे हैं उसका नहीं। ठीक है, सो इसके बेसिस पे हमें कुछ चीजें यहाँ पे सीखनी है। देख लीजिए इस फिगर में, दिस फैक्ट clearly indicates that there is some magnetic field present everywhere on the earth. This is called terrestrial magnetism. It is extremely useful during navigation. So सी, अगर हमें सी राउट के थ्रू जर्नी करनी है, सो these मैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज वेरी यूजफुल। जो कंपास रहते हैं उनके पास में, तो उस कंपास की मदद से दे कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। अभी चारों तरफ पानी ही दिख रहा है उनको, तो डायरेक्शन का अंदाजा नहीं जल्दी लगा पाते वो लोग। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ कंपास दे कैन differentiate between the directions, okay, so magnetic parameters of the earth are described below. The magnetic lines of force enter the earth's surface at the north pole and emerge from the south pole. तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो अर्थ के नॉर्थ पोल में एंटर करती है। ओके, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर द अर्थ सरफेस एट नॉर्थ पोल एंड इमर्ज फ्रॉम साउथ पोल। मतलब कि नॉर्थ पोल, सी दिस इज अ नॉर्थ पोल, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल। ओके, सो यहां से लाइंस अंदर जा रही है और यहां से लाइंस बाहर आ रही है। ओके, मैग्नेटिक लाइंस, दीज आर मैग्नेटिक लाइंस। सो अनलेस and otherwise stated, the directions mentioned north, south, etc. are always geographic. Okay, तो जो भी हम डायरेक्शंस की बात करेंगे मोस्टली यहाँ पे, तो नॉर्थ साउथ, सॉरी जियोग्राफिक डायरेक्शंस की ही हम बात करेंगे। ओके, जियोग्राफिक डायरेक्शन में और मैग्नेटिक डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है? उल्टा ही डिफरेंस है। ओके, मतलब जियोग्राफिक अगर नॉर्थ है तो मैग्नेटिक साउथ है, और मैग्नेटिक नॉर्थ है तो जियोग्राफिक साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पे जो डायरेक्शंस दी है वो सारी की सारी जियोग्राफिक डायरेक्शंस दी है। ओके, सो दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज अ जियोमेट्रिक एक्सिस। ओके, दिस इज जियोमेट्रिक एक्सिस एंड दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। देखिए ये जो है यहाँ पे जो आपको लाइन दिख रही है, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब हमारा जो अर्थ है, अर्थ इज नॉट लाइक कंप्लीटली लीनियर बार मैग्नेट, मतलब कि ऐसा स्ट्रेट बार मैग्नेट नहीं है, इस तरह का स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड बार मैग्नेट टाइप है। ओके, सो दिस इज द फिगर ऑफ स्ट्रेट अर्थ। एक्चुअल में अर्थ जो है वो भी थोड़ी सी टिल्टेड ही है। सो अगर अर्थ को हम अगर एक्चुअली ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा इस ओर, यहाँ पे कहीं तो आ जाएगा। ओके, सो इट विल बी लाइक दिस। सो जस्ट ऑब्जर्व द फिगर and try to understand the parameters that are given below. So first parameter is magnetic axis. Now what is magnetic axis? The earth is considered to be a huge magnet, magnetic north pole. Now remember the name, magnetic north pole. Now this is the magnetic north pole, and of the earth is located below Antarctica, while the south pole, this is south pole, that is below North Canada. Okay, so Canada जो है, Canada is a country, big country in
northern hemisphere. Okay, the straight line of NS joining these two poles is called magnetic axis. So magnetic axis is this, जो हमारा आर्कटिक है, आर्कटिक और अंटार्कटिका, इसको ज्वाइन करने वाला जो एक्सिस है, दैट इज नॉट द मैग्नेटिक एक्सिस, दैट इज जियोग्राफिक एक्सिस. ओके, magnetic axis is different, it is this one, this is a magnetic axis that is denoted by mm dash. Now magnetic equator, a great circle in the plane perpendicular to magnetic axis is magnetic equatorial circle. A dash, it happens to pass through India near Tiruvananthapuram. Okay, so ये जो magnetic equator है, magnetic equator is different from the geographic equator. Okay, so हम जो equator आज तक पढ़ते आए हैं geography के book में, so this equator is different than magnetic equator. तो मैग्नेटिक इक्वेटर इस फिगर में कहां पे दिखाया गया है, दिस इज द मैग्नेटिक इक्वेटर. सो मैग्नेटिक इक्वेटर की कोई लाइन नहीं है, दिस इज अ सर्कल. ओके, सो अगर हम एक स्पेयर के, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि ये जो यहाँ पे फिगर दिखाई गई है, दैट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्पेयर, इट इज अ स्पेयर. ओके, या it revolves around the sphere. So this is magnetic equator, and magnetic equator हमारे इंडिया में से पास होता है, and where it is located, it is near Tiruvananthapuram and the place's name is Tumba. Okay, THUMBA, जहाँ पे कि हमारा एक रिसर्च सेंटर भी है, इसरो का जो रिसर्च सेंटर है, द फर्स्ट रिसर्च सेंटर वाज आई थिंक established there only at Tumba. Okay, because of this advantage of magnetic equator. ठीक है, so geographic meridian, now a plane perpendicular to the surface of earth, vertical plane perpendicular to the geographic axis is geographic meridian. now what is meridian, geographic meridian? so देखिए, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को आप एक्सिस ना कंसीडर करके एक प्लेन कंसीडर कीजिए. प्लेन लाइक सपोज देयर इज अ वन, okay, if this is a let us say volleyball type one sphere, and we have one large let us say A3 size paper. Okay, A3 size paper, and we can cut the sphere or cut the ball in middle, and we are just putting the paper inside that sphere and we are closing it. Okay, so it is not a line, it is a plane that is cutting. Okay, so this is a जियोग्राफिक मेरिडियन. सो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्लेन को हम कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन. नो मैग्नेटिक मेरिडियन इज व्हाट, मैग्नेटिक मेरिडियन इज a plane along this line or the magnetic axis. so magnetic axis में और magnetic meridian में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. magnetic axis is a straight line, whereas magnetic meridian is a plane that is parallel to that axis, or we can say coinciding with that axis. Okay, magnetic axis. so मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों एक ही जगह पे लोकेटेड है, इस फिगर में एक ही जगह पे लोकेटेड है, लेकिन एक प्लेन है तो दूसरा एक लाइन है. now magnetic declination, now what is magnetic declination? the angle between the geographic and magnetic meridian at a place is called magnetic declination. the declination is small in India, it is 0.0 degree 58 minutes west at Mumbai and 0 degree 41 minutes east at Delhi. Thus, at both these places, magnetic needles show the true north accurately. So, क्या ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एग्जैक्टली है क्या? ये जो दो हमने प्लेन ड्रॉ किए हैं ना यहाँ पे इस फिगर में, जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में जो एक एंगल बनता है उस एंगल को हम कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन. सी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. सो इस डिक्लिनेशन का व्हाट वी कैन से, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी वैल्यू जितनी छोटी रहेगी, जितनी छोटी इसकी वैल्यू रहेगी, उतना हमारा जो डायरेक्शन सेंस है या फिर हमारा जो कंपास है वो करेक्ट डायरेक्शन हमें शो करेगा. समझ रहे हो? मतलब अगर मैग्नेटिक मेरिडियन इज कोइंसाइडिंग विथ जियोग्राफिक मेरिडियन, दैट मींस द डायरेक्शन शोन बाय आवर मैग्नेटिक कंपास इज 100% एक्यूरेट. समझ रहे हो? मतलब कि
हमारा जो कंपास है दैट विल ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब कि मैग्नेटिक मेरिडियन की ही डायरेक्शन दिखाएगा वो। और हमारा जो जियोग्राफिक मेरिडियन है, यानी कि हमारा व्हाट वी कैन से द लाइन और द प्लेन दैट इज अलोंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जियोग्राफिकली। ओके, सो इस तरह से हमें थोड़ा सा क्या कह सकते हैं हम कि एग्जैक्ट या फिर प्रॉपर हमें वैल्यू मिलेगा ऑफ, और नॉट वैल्यू वी कैन से proper sense of direction we will get if the angle is very less. Okay, now what is the magnetic inclination or angle of dip? Now angle made by the direction of resultant magnetic field with the horizontal at a place in inclination or angle of dip at a place. Okay, so see, अभी मान लीजिए कि ये जो नीडल है ना, ये नीडल इस तरह से भी घूम सकती है। ओके, और यहाँ पे ऊपर नीचे भी ये घूम सकती है। दिस नीडल इज लाइक दिस। ओके, सो एंगल ऑफ डीप यानी कि क्या, इफ वी आर एट इक्वेटर, इफ वी आर एट मैग्नेटिक इक्वेटर, ओके, लेट अस सपोज सी दिस इज अ मैग्नेटिक इक्वेटर एंड आई एम एट लाइक दिस। सो अगर मैं यहाँ पे हूं तो ये जो एंगल रहेगा दैट विल बी जीरो, मतलब कि ये जो नीडल रहेगी दैट विल बी स्ट्रेट, मतलब इट इज शोइंग कि you are parallel to the magnetic equator. ओके, अगर मैं यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में चला जाऊं, सदर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं चला जाता हूं, सो इट विल शो डायरेक्शन लाइक दिस, कि मतलब यू आर इन अ सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे साउथ पोल पे चला जाऊं तो सो इट विल शो लाइक दिस, ये जो एरो रहेगा दैट विल पॉइंट लाइक दिस एंड इट विल शो यू आर एट अ साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। अगर यहीं पे इसकी डायरेक्शन अगर ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल दिस डायरेक्शन इज लाइक दिस। ओके, ये जो नीडल है ना यहाँ पे, ये नीडल अगर यहाँ पे आ जाती है, सो दैट मीन्स वी आर एट दिस पोल। ओके, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप, दिस इज एंगल ऑफ डिप। और ये जो इंस्ट्रूमेंट जिसे जो कि एंगल ऑफ डीप मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है डीप सर्कल। ओके, डीप सर्कल इज द इंस्ट्रूमेंट which measures the angle of dip. I hope you understand the angle of dip and angle of declination. Now Earth's magnetic field, magnetic force experienced per unit pole strength is magnetic field B at that place. It can be resolved in component along horizontal BH and along vertical BV. The vertical component can be conveniently determined. The two components can be related with the angle of D, deep, that is phi as. Okay, so what is BH and what is BV? See, B is a vector quantity. Okay, vector quantity है, मतलब कि इसकी एक तो मैग्नीट्यूड रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ this is a plane that is xy, okay, this is a horizontal plane, so sorry, horizontal line, this is vertical line and this is our vector. So अगर हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, let us suppose this vector is b, so इसका एक कुछ horizontal component रहता है, that is we call it as a bh, and there is one vertical component as well, so that is bv. Okay, so we have seen this. आप लोगों को याद है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन for vector quantity there are always what we can say vertical and horizontal components. Okay, so vertical और horizontal components को express किस तरह से किया जाता है, b is equals to bh is equals to b cos theta and bv is equals to b sin theta. तो ये जो फॉर्मूलाज है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो दो फॉर्मूलाज है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए आप लोग याद कर लीजिए, लिख भी लीजिए। सो bv अपॉन bh अगर हम करें, bv अपॉन bh अगर हम करें तो we will get tan phi. How tan phi? bv will get cancelled and sin divided by cos will be tan phi. Okay, so similarly अगर b का आपको मैग्नीट्यूड का निकालना है, so b is equals to root of bv square plus bh square. Now don't get confused what is bv bh. जब आप इस पे बेस्ड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे then it will seem very easy to you. Okay, so just write down all these things. ये जो यहाँ पे दिया है आपको ये लिख लीजिए और मुझे बताइए कि आपने लिख लिया है। ओके, just do a separate notebook और just few pages। अगर एक चैप्टर के लिए आप एक सेपरेट मतलब जो जोड़ पन्ना रहता है ना वो भी अगर कर लेते हैं तो आपके सारे फॉर्मूलाज उस एक पेज पे आ जाएंगे। ओके, सो यू हैव टू टेक द रनिंग नोट्स in the form of formulas.
तो ये फॉर्मूलाज लिख लीजिए आप लोग, आपको काम आएंगे जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे। तो होने के बाद में मुझे बताइए। ओके ओके गुड, ठीक है। सो बी इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट मिल रहा है। ओके, सो एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल B is equals to BV directed upward, BH is equals to 0 and phi is equals to 90। ठीक है। सो अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की बात करें, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ऑब्वियसली नहीं, सॉरी, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ओनली एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 0। नाउ फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ओके, वैसे तो उल्टा रहता है अर्थ के केस में, लेकिन मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो देखिए, सो दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड में देखिए ये रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज बी एच, दिस विल बी बी एच एंड दिस विल बी बी वी, बी वी। सो एट नॉर्थ पोल पे अगर आप देखोगे तो बी एच की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 0 रहेगी। बी एच की वैल्यू 0 ही है। अगर यहाँ पे आप कुछ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बी एच की कुछ वैल्यू मिलेगी। लेकिन if you are not going in this direction, you are going in the upward direction, so B is equals to, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड will be equal to BV, मतलब कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसके इक्वल ही रहेगा and BH will be 0 and angle will be 90 degree, as you can see here 90 degree यहाँ पे एंगल है। ठीक है, so if we consider the साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल की अगर आप डायरेक्शन कंसीडर करें लाइक दिस, ओके, तो यहाँ पे भी एंगल जो है वो रहेगा 270 डिग्री या फिर -90 डिग्री एंड अगेन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0। यहाँ पे 0 ही है ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिर्फ वर्टिकल की ही वैल्यू यहाँ पे हमें आ रही है। अगर आपको वेक्टर एनालिसिस अच्छे से आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अच्छे से किया है, तो आप लोग इस कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ओके, नाउ इफ वी कंसिडर अलोंग द what we can say magnetic equator, okay, see magnetic equator के अगर along हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, so that will be equal to BH, मतलब horizontal component ही रहेगा and vertical will be 0। okay, see यहाँ पे अगर हम horizontal इक्वेटर, सॉरी मैग्नेटिक इक्वेटर के अलॉन्ग हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सो यहाँ पे जो कुछ वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी ऑफ बी एच ओनली, बी हॉरिजॉन्टल ओनली, बी वर्टिकल जो है वो 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसी स्केल रहेगी, आप कंसीडर कीजिए ना, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, सो लेट अस से 1 2 3 एंड सो ऑन, सो 1 2 3 4 5 like this, these values are there, these values are there here, and along the magnetic equator total magnetic field will be equal to horizontal component of the magnetic field and the vertical component will be 0। okay, so this is I think easy to understand, not that hard, is it? चलिए बताइए, समझ में आया? ये तीन चीजें स्पेशल केसेस जो है वो समझ में आई आप लोगों को? इमेजिनेशन इज नेसेसरी। ओके गुड गुड, ठीक है, समझ में आया, दैट इज गुड। सो सी देयर इज अगेन वन टॉपिक दैट इज, okay, Sankalp left, why did he left? Okay, magnetic maps of the earth. Now magnetic elements of the earth BH, alpha and phi vary from place to place and also with time। ठीक है, तो BH is what, horizontal component of magnetic field, alpha is what, alpha is angle of declination, okay, and phi is what, angle of inclination। So these three quantities are there।
सो ये जो वैल्यूज है ये हर जगह पे चेंज होगी, अर्थ के सरफेस पे आप कहीं पे भी चले जाइए आपको ये वैल्यू अलग अलग दिखाई देगी, समझ रहे हो। सो दिस वैल्यू विल बी डिफरेंट डिफरेंट at different places. The maps providing these values at different locations are called magnetic maps. These are extremely useful for navigation. Magnetic maps drawn by joining places with the same value of a particular element are called isomagnetic charts. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको 1 से लेके 255 तक नंबर्ड कार्ड्स दिए हैं। ओके, यहां पे भी 1 से लेके 255 तक नंबर्ड कार्ड्स है। ओके, इस तरह के आपको 3 स्टैक दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें से एक उठाना है, इसमें से एक उठाना है, इसमें से एक उठाना है, ऐसे 3 कार्ड, एक एक कार्ड आपको उठाना है। सो देयर विल बी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, मतलब कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज है, बी एच, अल्फा एंड फाई, इन तीनों की वैल्यू भी अलग अलग है, बराबर। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमें मिलेंगे। सो इसकी मदद से क्या होता है कि इसकी मदद से लोकेशंस हमें अर्थ पे जो है वो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए इन तीनों पैरामीटर्स की जो वैल्यू है दैट विल बी यूनिक, मतलब कि मैं जहां पे अभी क्लास ले रहा हूं वहां पे बी एच की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू एंड फाई की वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन रहेगा दैट विल बी एब्सोल्युटली एंड 100% डिफरेंट देन द वैल्यूज दैट यू आर एट राइट नाउ। मतलब कि आप जहां पे है वहां पे जो वैल्यूज रहेंगी वो वैल्यूज 100% डिफरेंट रहेगी देन माय वैल्यूज। ओके, सो दिस इज द these concepts are used for drawing maps and these maps are called magnetic maps of earth. We usually don't use these kind of maps. Okay, so यहाँ पे भी आपने मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 से लेकर 255 तक है, तो मान लीजिए कि किसी बच्चे ने क्या कर लिया कि इसमें से भी 2 उठा लिया, इसमें से भी 2 और इसमें से भी 2, तो ये तीनों वैल्यूज सेम हो गई। ठीक है, सो मतलब कि तीनों पैरामीटर की वैल्यू सेम हो गई। So similarly, line joining the places of equal horizontal components BH, मतलब कि BH की वैल्यू कुछ जगह पे अगर सेम ही है तो उस जगह को जोड़ने वाली जो लाइन रहेगी, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। ओके, सो BH की वैल्यू इक्वेटर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सारी जगह पे सेम ही रहेगी BH की वैल्यू। ओके, सो दिस विल बी one line that is joining the values of BH and these lines are called isodynamic lines. Isodynamic lines कौन सी lines? जो कि horizontal components को connect करती है। Similarly, lines joining the places of equal declination of equal declination that is alpha are called isogonic lines. Okay, अगर हम अल्फा की बात करें, अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, तो एंगल की भी तो वैल्यू सेम रह सकती है। मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहाँ अर्थ तो मैं कुछ खतरनाक ही ड्रॉ कर रहा हूं लेकिन एडजस्ट कीजिए, यहाँ पे एंगल की वैल्यू सेम है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू सेम ही है, यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू सेम ही है। ओके, सो ये जो लाइन इन चारों पॉइंट्स को ड्रॉ करेगी दैट विल बी आइसोगोनिक लाइन बिकॉज इट इज कनेक्टिंग द प्लेसेस which are having the value of alpha same or equal. Similarly, lines joining the places of equal inclination or dip are called aclinic lines. Okay, so these 3 types of lines are there. You may be asked question for 1 marks from like this 3 points. Okay, तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए। तो इसके बाद में बचते हैं 2 एग्जांपल्स। सो ये 2 एग्जांपल्स करने के लिए आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये दोनों एग्जांपल समझ में आएंगे, स्पेशली द सेकंड एग्जांपल। ओके, सो वी विल सी कि हम ये कब नेक्स्ट क्लास ले सकते हैं फिजिक्स का, मोस्टली ऑन फ्राइडे और सैटरडे। ओके, उसमें हम ये 2 एग्जांपल्स कवर अप करेंगे एंड इफ नीडेड वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस भी। आप क्वेश्चंस भी देख लीजिए, आपको कुछ हार्ड लगते हैं क्या, तो हम अगर आप को क्वेश्चंस कुछ हार्ड नहीं लगते हैं देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक chapter, that is electromagnetic waves and communication systems. Okay, so that's it for today and yes, we will meet in the next class. Okay, until then, bye bye. Chalo, bye bye, leave the class, bye bye everyone.